Hi everyone, this is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to the lecture number 7 of alcohols, phenols and ethers. So in the last lecture, we were discussing about the esterification reactions. I told you that there were two categories, that there are two possibilities for the alcohols to react. The first one is the reactions which involve the cleavage of OH bond, and the other category is the reactions which involve the cleavage of CO bond. So the reactions involving OH bond breakage, there were the reaction with the metals and the esterification reaction. So in the esterification reaction, we discussed that the alcohols, they can react with the carboxylic acids or the acid chlorides and the acid anhydrides to form esters. Okay? So these either of the three reactants and the product is same, that is ester. Now the acetylation of salicylic acid, it produces aspirin. It is a very important reaction and it should be remembered. Now the reactions that we did in the last lecture, they are only applicable for the alcohols. They are not applicable for the phenols. So in them, the first reaction was reaction with hydrogen halide, in which we discussed the Lucas test. Then we discussed about the reaction with phosphorus trihalide. Both these reactions, they give us alkyl halide. Okay. अगर if we want to prepare alkyl halide from the alcohol, then we can choose either of these reactions. Now the third one was dehydration. This is a method of preparation of alkenes from alcohols. And the reagent which is used is concentrated H2SO4 or concentrated H3PO4 for dehydration. Dehydration matlab the removal of the water molecule. And we also discussed the mechanism, that there's a three-step mechanism, and the tertiary alcohols, they are the most reactive to this dehydration because because in the mechanism we discussed that there is a formation of carbocation in the intermediate step, and therefore we know that the tertiary carbocations, they are the most stable as compared to secondary and primary. Therefore, tertiary alcohols are the most reactive in the case of dehydration. Then coming to the oxidation, we divided it into three categories. That is the primary alcohols. When they are oxidized, they give aldehyde and the reaction will proceed to carboxylic acid. Okay. If we use the strong oxidizing agent like acidified KMNO4, then the reaction will go on till carboxylic acid directly. Okay. But if we want the reaction to stop at aldehyde only, मतलब हमें carboxylic acid नहीं चाहिए, हमें aldehyde prepare करना है, then we need to use some specific reagents, that is CrO3, which is chromium trioxide, and PCC. PCC full form is pyridinium chlorochromate. ठीक है, तो अगर ये दो reactants कहीं पे भी दिए हैं, ये दो reagents, they are used with alcohol, then you just have to remember that this is a oxidation reaction in which the product will be aldehyde. Now, for the case of secondary alcohols, they are always oxidized to ketones. ठीक है, क्योंकि दो alkyl group लगे हुए हैं तो हमेशा ketone ही बनेगा. ठीक है, OH group will convert to double bond O. Tertiary alcohols do not undergo oxidation. ठीक है, और अगर हम जबरदस्ती ऑक्सीडेशन करवाते भी हैं बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर, तो इतनी हार्श कंडीशंस की वजह से क्या होता है कि जो CC बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है, और फिर देयर इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हिच आर फॉर्म्ड, जो कि हमें नहीं चाहिए. ठीक है, वी डोंट वांट द मिक्सचर ऑफ एसिड्स. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन of the alcohols. Now today we are going to discuss the reactions of phenols. ठीक है, अभी जो हमने discuss किया that were the reactions of alcohol and they are not applicable for phenols. Now moving forward, so the first, okay, I'll write it down first. These are the reactions of phenol.
So the first one in this category is electrophilic substitution. So electrophilic substitution क्या होता है कि whenever electrophile is attacking, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे डिनोट करते हैं, ई प्लस, बिकॉज वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इट हैज अ डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप विच हैज अ डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन बी नोन एज, इट कैन बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो whenever electrophile or any electrophilic group will attack the phenol, what happens is कि it will search for the position which has uh, more number of electrons or which has higher electron density। ठीक है, तो E प्लस है क्योंकि, तो वो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के लिए सर्च करेगा। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज कि जो द OH ग्रुप, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, इट एक्टिवेट्स इट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे? बिकॉज लास्ट टाइम ऑल्सो आई ड्रू द resonance structures. I am drawing it again just for the clarity purpose. These are the two lone pair of electrons and this is the benzene ring. So in resonance what will happen is कि ये जो lone pair है ये इधर जाएगा, double bond pi electron बना देगा and this pi electrons will come here as a negative charge. So the next structure would be one lone pair, यहाँ पे double bond और ये वाले electrons यहाँ negative charge. Now again ये ऐसे आएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ, नेगेटिव चार्ज इधर पे और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल हैपन, यहाँ नेगेटिव चार्ज, सो दिस इज द केस। ठीक है, अब इनमें क्या हो रहा है कि यू कैन सी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज डीलोकलाइज्ड, मतलब वो एक जगह पे नहीं है। आप देख रहे हो कि पहले नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे है इन दिस स्ट्रक्चर, देन इन द नेक्स्ट वन वी हैव द नेगेटिव चार्ज एट द para position, and then in the last one we again have the negative charge at the the other ortho position। ठीक है, so you can see that this delocalization of negative charge ये क्या करता है कि this activates the benzene ring towards the electrophilic substitution। मतलब इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, उसे नेगेटिव चार्ज ही चाहिए और ये पूरी रिंग में नेगेटिव चार्ज को स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस कि it directs the incoming group to the ortho and the para position। Why? Because as you can see the electron density is increasing at the ortho and para positions। ठीक है, मेटा पे आप देखो, मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक बार भी नहीं बढ़ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा कम होती है मेटा पोजिशन पे, दैट इज वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कभी भी मेटा पोजिशन पे नहीं होता। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब अलग अलग ग्रुप्स जब आके अटैच होंगे, अटैक करेंगे, सो दे विल गेट अटैच्ड। सो द फर्स्ट वन इज नाइट्रेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर है ये नाइट्रेशन। So when phenol is treated with dilute HNO3 or dilute nitric acid at low temperature, it will give ortho and para nitrophenol. So writing down the reaction, this is phenol and it is treated with dilute HNO3 and that too at normal temperature, room temperature. So it will give ortho and para। ये ऑर्थो हो गया, ये पैरा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, O फॉर ऑर्थो एंड P फॉर पैरा। ठीक है, now you get a mixture which is containing the orthonitrophenol and paranitrophenol। Now what you will do if you want to separate these two compounds in that mixture, so this is a physical property, there is a difference in the physical property of both these types of phenols and that is the volatility or you can say the boiling point। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, दैट मीन्स उसे ज्यादा हीट या फिर ज्यादा टेम्परेचर पे वो बॉयल होगा। ठीक है, इसका मतलब वो कम वॉलेटाइल है। ठीक है, तो दे आर सेपरेटेड, ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं दे आर सेपरेशन
दे आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम लोग, बॉईल करते हैं, एंड जिस भी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, वो पहले बॉईल हो जाता है, तो वो पहले वेपराइज हो जाएगा एंड इट विल गेट कलेक्टेड, इट विल जस्ट form vapors and it will go to the another container, ठीक है, and there it is again condensed back to the liquid form। ये होता है simple distillation में, ठीक है। same is the case here because orthonitrophenol is steam volatile, वो ज्यादा volatile होता है due to the intramolecular hydrogen bonding। अब ये देखो, आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर्स की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो दोनों केसेस में कैसी होती है। तो इफ वी ड्रॉ दी फर्स्ट, लेट अस ड्रॉ दी ऑर्थो isomer, this is NO2, this is the ring and this is OH group, ठीक है। तो क्योंकि ऑर्थो में द नाइट्रो ग्रुप मतलब NO2 ग्रुप एंड OH ग्रुप दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, आप देख रहे हो ना, बिल्कुल अगल बगल कार्बन पे लगे हुए हैं, एडजेसेंट कार्बन पे। सो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बिकॉज ऑफ विच देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब आप एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। और we draw the case for para nitrophenol, then it will be like this is NO2, this is hydrogen bonding, this is a hydroxy group of another molecule, ठीक है, और यहाँ पे फिर से NO है, NO2 है, ठीक है। अब यहाँ का जो NO2 होगा वो कहीं किसी और मॉलिक्यूल से कनेक्टेड होगा, सिमिलरली यहाँ का O जो होगा वो किसी और मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होगा। तो ये जो केस है दिस इज द पैरा एंड इट इन्वॉल्व्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस इन बोथ दीज आइसोमर्स, ठीक है। इसमें इंट्रा है, इंट्रा मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, आई मीन द सेकेंड मॉलिक्यूल इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटर मॉलिक्यूलर मतलब होता है कि व्हेन टू मॉलिक्यूल्स दे आर connected by hydrogen bonding, they are interacting with the help of hydrogen bonding together, ठीक है, बाय themselves मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। बोथ द मॉलिक्यूल्स टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग। और इंट्रा में क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर में एक ही मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। सो नाउ दिस वाज द स्ट्रक्चर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है। सो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज मोर वॉलेटाइल ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, while para-nitrophenol is less volatile due to the intermolecular hydrogen bonding, which results in the association of molecules। तो intermolecular hydrogen bonding में because of the association of molecules, क्योंकि molecules आपस में interact कर रहे हैं, आपस में attracted हैं, so they will not leave, मतलब उन्हें boil out करने के लिए you need a large temperature, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा पैरा आइसोमर का, ठीक है। इट इज लेस वॉलेटाइल मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मोर बॉइलिंग पॉइंट, तो ये बाद में वेपराइज करेगा, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, तो ये पहले वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। लेस बॉइलिंग पॉइंट मतलब मोर वॉलेटाइल, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जाम्स एंड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफेनॉल्स को अगर सेपरेट आउट करना है तो विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड हियर, ठीक है। सो ओके, नाउ इन नाइट्रेशन, इफ what will happen if you use concentrated HNO3 in place of dilute HNO3, ठीक है। तो दिस वाज द ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई एम डिलीटिंग हियर, ठीक है। नाउ इफ यू रिएक्ट दिस OH विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, अभी हमने डाइल्यूट HNO3 लिया था, अब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो क्या होगा,
हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब NO2, NO2, NO2। ठीक है, दिस इज नोन एज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, और इन अ कॉमन नेम दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, यू शुड रिमेम्बर दिस, जस्ट लर्न दिस, पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो यू मस्ट रिमेम्बर कि अगर डाइल्यूट HNO3 यूज हो रहा है तो मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनेगा, मतलब वन आइदर ऑफ द ऑर्थो और ऑफ द पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इफ you are using concentrated HNO3, then you will get a tri substituted tri nitro product. ठीक है, now the second reaction of the electrophilic substitution category is halogenation। halogenation मतलब simply halogen is being uh, added to the phenol compound। so as we saw in the case of nitration कि अलग अलग कंडीशन पे या फिर अलग रिएजेंट यूज करने पे वी आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉर वन केस इट इज मोनोनाइट्रोफेनॉल एंड द अदर केस इट इज ट्राइनाइट्रोफेनॉल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम कंडीशन सेम ही होगा, व्हेन यू आर यूजिंग डिफरेंट कंडीशंस देन यू विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो नाउ द फर्स्ट कंडीशन सेज व्हेन यू विल ट्रीट फेनॉल विद ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन से ट्रीट किया इन द सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी सच एज क्लोरोफॉर्म और CS2। ठीक है, तो दिस इज अ सॉल्वेंट, यहाँ पे either you will use CHCl3 which is chloroform or you can use CS2। Both these solvents are of low polarity, I am writing or here। ठीक है, मतलब कोई भी एक यूज कर सकते हैं, and that too at the low temperature, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर या फिर इससे भी कम टेम्परेचर पे। then monobromophenol are formed, because ये जो conditions हैं these are mild conditions। ठीक है, so here you will get bromine, this is the para isomer and this is the ortho isomer। ठीक है, this para isomer is the major product and ortho one is the minor। ठीक है, now when you change the these conditions, this is phenol and you react it with bromine water and without using any solvent, then what is the product? This is 2,4,6 tribromophenol। ठीक है, and this is formed as a white precipitate and this is bromine water। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रोमीन गैस रिएक्शन करवाया था एंड दैट टू एट लो टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ लो पोलैरिटी सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट CS2 लिया जाता है ज्यादातर केसेस में। सो ब्रोमीन, इफ यू आर गिवन इन द क्वेश्चन दैट फेनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन CS2, देन आपको मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट बनाना है। एंड इफ इट इज गिवन दैट फेनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर एंड नो सॉल्वेंट इज गिवन विद ब्रोमीन वाटर, इट मीन्स आपको ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, नाउ द हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, अगर हम बेंजीन में डायरेक्टली हैलोजनेशन करवाना चाहते हैं सो इट विल रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड लाइक FeBr3, बट इन दिस केस हम लोग फेनॉल में ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं। ठीक है, सो इट डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एनी लुइस एसिड, हमें बस यहाँ पे सॉल्वेंट चाहिए, हमें कोई लुइस एसिड नहीं चाहिए। एंड व्हाई इज दिस सो? बिकॉज हमें पोलराइजेशन ऑफ द हैलोजन मॉलिक्यूल नहीं करवाना है, बिकॉज ऑफ द हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की वजह से काफी एक्टिवेट कर देता है रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, सो इट डज नॉट नीड एनी लुइस एसिड। सो दिस वाज ऑल फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ वी विल मूव ऑन टू another other reactions of phenol। So the second reaction in this category is known as coal base reaction। ठीक है, it is a named reaction
सो दिस इज सिंपल, यू डोंट, यहाँ पे क्या होता है कि फेनॉक्साइड आयन इज बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट राइट डाउन एंड देन आई विल एक्सप्लेन। दिस इज फेनॉल एंड इट इज ट्रीटेड विद NaOH। तो ये तो रिएक्शन हमेशा वही होता है कि whenever phenol is treated with NaOH you will get ONA, मतलब सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है, नाउ यू नो दैट फेनॉक्साइड आयन विल बी मोर रिएक्टिव देन फेनॉल, क्योंकि फेनॉक्साइड आयन में चार्ज सेपरेशन है। ठीक है, और बिकॉज ऑफ रेजोनेंस द जो नेगेटिव चार्ज होगा ना दैट विल बी डीलोकलाइज्ड। ये फेनॉक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये है फेनॉक्साइड आयन O-। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज इट टेक्स प्लेस इन द रेजोनेंस, so it is more reactive. Now when you treat this sodium phenoxide with CO2 and then with acid, मतलब ये जो 1 और 2 I have written it uh, before the reagent, that means कि first you will add CO2, ठीक है, and after the reaction has been completed you will add H plus। ठीक है, एक साथ ऐड नहीं करना है, 1 और 2 का मतलब यही है कि you have to add them one one by one and not simultaneously। So the product that you will get here is COOH. ठीक है, oxidation product, and the name of this product is 2-hydroxybenzoic acid। ठीक है, because in this case जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो जो नंबर 1 कार्बन होगा वो ये होगा और नंबर 2 ये होगा, तो 2-hydroxybenzoic acid। ठीक है, and the common name of this compound is salicylic acid। ठीक है, this is also an important acid and many times in the exam they can directly ask you the this ask you any question with the help of a this common name, मतलब they will not give you 2-hydroxybenzoic acid क्योंकि इसे आप स्ट्रक्चर बना लोगे, but they will give you salicylic acid because many people they don't remember the structure कि salicylic acid होता क्या है, so they are not able to attempt the question। ठीक है, so this is salicylic acid and remember COOH is attached at the ortho position। ठीक है, मतलब और you can say OH is attached at the ortho position। यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन में यू नेवर गेट द पैरा प्रोडक्ट, मतलब ऐसा नहीं होता है कि OH जो है वो 4th पोजिशन पे लग जाए, यू विल ऑलवेज गेट द ऑर्थो प्रोडक्ट ओनली। नाउ द थर्ड reaction in this category is Remer-Tiemann reaction। Remer-Tiemann reaction. So in this reaction, this is phenol and it is reacted with chloroform। CHCl3 is chloroform in aqueous NaOH। ठीक है, and here you get a intermediate product which is O minus Na plus and this is CHCl2। ठीक है, this is the intermediate product and again when this product it reacts with NaOH, so you get O minus और ऑर्थो पोजीशन पे ही CHO लग जाता है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। नाउ एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H plus means acid। So this is the final compound, final product and the common name is salicyl aldehyde। ठीक है, ऊपर क्या था, सैलिसिलिक एसिड, क्यों, क्योंकि एसिड था यहाँ पे, मतलब COOH ग्रुप था। ठीक है, और सैलिसिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है एंड यू कैन रिमेम्बर इट बाय जस्ट मेमोराइजिंग दैट सैलिसिल वर्ड अगर लिखा हुआ है दैट मीन्स कि OH हैज टू बी इन द ऑर्थो पोजीशन, ऐसे याद कर सकते हो आप, OH इन ऑर्थो पोजीशन। और बाकी अगर एल्डिहाइड है तो CHO रहेगा और अगर एसिड है तो COOH रहेगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, so now this Riemann-Tiemann reaction it is a very important reaction because you can prepare this, you can simply put add CHO group in the ortho position। ठीक है, और अगर COH group add करना है तो आप cold base reaction करवा सकते हैं। Now coming to another reaction, reaction of phenol with
जिंक डस्ट। ठीक है, so this is simple. This is phenol plus zinc and the product will be benzene. ठीक है, तो if you want to convert phenol to benzene, then you can do the reaction with zinc dust. Then the last one in this category is oxidation of phenol. ठीक है, तो यहाँ पे for oxidation we have a special reagent. I mean हम लोग normal oxidizing agent से नहीं करवाते हैं oxidation. We use a special reagent and this reagent is chromic acid. और क्रोमिक एसिड हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं. वी यूज सोडियम क्रोमेट Na2 Cr2O7 विद H2SO4. ठीक है, तो जब इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो देन क्रोमिक एसिड विल फॉर्म H2Cr2O7. ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं यूज करेंगे. वी विल यूज बोथ दीज रिएजेंट्स एंड दे विल रिएक्ट टू फॉर्म क्रोमिक एसिड. एंड व्हेन फेनॉल इज treated with this reagent, then जो oxidation product होता है known as that is a conjugated diketone. डाइकीटोन मतलब यहाँ पे दो कीटोनिक ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, दिस इज नॉट अ बेंजीन रिंग. आप देख लो ये जो डबल बॉन्ड है, ये ये जो कॉन्जुगेशन है ये O के साथ में है. ठीक है, ये ओवरऑल बेंजीन रिंग में नहीं है, बिकॉज यू कैन सी कि ये जो दो बॉन्ड्स हैं दे आर नॉट इन कॉन्जुगेशन, ये ऑल्टरनेट पोजिशन पे नहीं है. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ डाइकीटोन एंड इट्स नेम इज बेंजोक्विनोन. ठीक है, तो इसका नाम भी याद रखना है. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, बेंजोक्विनोन. So this was all. These were the five reactions, the five reactions of phenol. Now we will proceed with some examples. ठीक है, ठीक है. So the question says, what will happen? Like, what will be the product if you do the mononitration? If you carry out the mononitration of 3-methyl phenol. तो फर्स्ट वी विल राइट डाउन द रिएक्टेंट. क्या हमारे पास रिएक्टेंट क्या है? तो ये फिनॉल है एंड यू हैव 3-मिथाइल. तो 1 2 3 मतलब मेटा पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, अब इसका मोनोनाइट्रेशन करवाएंगे. मतलब नाइट्रेशन मतलब द एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, बस. ठीक है, तो वी हैव टू ऐड NO2 ग्रुप और वो भी मोनो, मतलब एक NO2 ग्रुप ऐड करना है एक पोजिशन पे. तो बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोफिलिक NO2, जो NO2 ग्रुप होता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो इट विल आइदर बी इन द ऑर्थो पोजिशन और इन द पैरा पोजिशन. मेटा पे CH3 लगा हुआ है, तो या तो वो पैरा पोजिशन पे NO2 लगेगा और ये अदर प्रोडक्ट विल बी ऑर्थो. ठीक है, और ये कैसे होता है? जब मोनोनाइट्रेशन होता है तो कैसे होता है? डाइल्यूट HNO3. ठीक, नाउ इफ यू वांट टू कैरी आउट डाइनाइट्रेशन. ठीक है, तो मान लो you want to carry out dinitration. So what will you change in the above reaction? You can simply you can simply replace dilute HNO3 with concentrated HNO3. ठीक है, तो जैसे ही हम लोग concentrated HNO3 यूज करेंगे तो हमें मल्टीपल प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, मेटा पे CH3 लगा हुआ है, so we will get NO2 here, we will get NO2 here, we will get NO2 here according to this. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या है कि डाइनाइट्रेशन है. ठीक है, तो वी वांट टू ऐड जस्ट 2 NO2 ग्रुप्स. तो बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, देखो आप OH और CH3 के बीच में ये वाला जो NO2 है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस दिस NO2 विल नॉट बी प्रेजेंट. ठीक है, ये ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं. मतलब OH इज ऑल्सो अ बिग ग्रुप एंड देन यू हैव CH3. ठीक है, तो इतना रिपल्शन की वजह से यू विल ओनली गेट अ डाइनाइट्रेट मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1-ऑल विद अल्कलाइन KMnO4. ठीक है, तो प्रोपेन 1-ऑल क्या है? इसका रिएक्शन यू हैव टू डू विद अल्कलाइन KMnO4. ठीक है, तो KMnO4 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है,
तो मतलब wherever you see KMNO4, it is always acting as an oxidizing agent. और ये क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो यू विल गेट अ एल्डिहाइड एंड फर्दर ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। वी डिस्कस्ड कि अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो वी विल गेट टिल एल्डिहाइड, एंड इफ वी यूज alkaline like alkaline KMNO4 as a strong oxidizing agent, then the final product will be directly acid. This, ठीक है। Now when we react phenol with bromine in CS2, क्योंकि CS2 एज अ सॉल्वेंट क्या करता है, माइल्ड कंडीशन बना देता है, ठीक है। CS2 इज अ सॉल्वेंट, वो माइल्ड कंडीशन बना देता है, एंड सो वी गेट मोनोब्रोमो प्रोडक्ट, ठीक है। आइदर एट द ऑर्थो और एट द पैरा, ठीक है। और अगर ये CS2 नहीं होता, ठीक है, सपोज द CS2 इज नॉट देयर एंड यू आर गिवन ब्रोमीन वाटर, देन यू वुड गेट अ ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब 2, 4 और 6 पोजिशन पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाता, ठीक है। नाउ you know that when you react phenol with dilute HNO3, so what you will get is you will get the mononitro product, मतलब at the ortho position or at the para position, ठीक है। Now the next exercise that we will do is we have to name the reagent, ठीक है। I will tell you the reaction कि कौन सा मतलब I will tell you the reactant and the product, ठीक है, and what is the reagent that can be used to carry out that reaction. You have to name that reagent. So the first question says oxidation of primary alcohol to carboxylic acid, मतलब primary alcohol to carboxylic acid, इसका मतलब है कि because we discussed कि if we want the carboxylic acid directly without getting the aldehyde, so we have to use the strong oxidizing agent, और strong oxidizing agents में क्या क्या होता है, we have acidified KMNO4, ठीक है। और K2Cr2O7 is also considered as a strong oxidizing agent. Now, if we want to convert primary alcohol, मतलब I'm writing it 1 degree alcohol to aldehyde, मतलब we don't want carboxylic acid, हमें reaction aldehyde पे ही stop कर देना है, तो there is a special compound, either we use CrO3 और better yields के लिए we will use PCC, and PCC is better yield देता है। The full form is pyridinium chlorochromate. Now, if we want to convert phenol to 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, तो इसका मतलब हमें हार्श कंडीशन चाहिए, हमें माइल्ड कंडीशन नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए। तो उसके लिए द ओनली रिएजेंट वी कैन यूज इज ब्रोमीन वाटर विदाउट एनी सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजाइल अल्कोहल फेनॉल नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फेनॉल हियर। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, ये CH2OH, ठीक है, एंड इट इज कन्वर्टिंग टू COOH, ठीक है। तो बेंजाइल अल्कोहल इज नॉट फेनॉल, इसका मतलब है कि इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ये सिंपली 1 डिग्री अल्कोहल है, तो इसको करवाने के लिए वी विल सिंपली यूज एसिडिफाइड KMNO4 जो हमने ऊपर यूज किया था, मतलब हार्श और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड KMNO4, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू गिव प्रोपीन। डिहाइड्रेशन मतलब you are removing a water molecule, or when you will remove OH and H from two different carbons, there will be a double bond in between them, there will be a unsaturation, ठीक है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन।
और इसके लिए व्हाट विल बी द रिएजेंट? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4. ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव ब्यूटेन टू ऑन टू ब्यूटेन टू ऑल. मतलब ब्यूटेन के सेकंड पोजीशन पे कीटोन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट टू सेकंड पोजीशन पे OH. मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें कीटोनिक ग्रुप को कन्वर्ट करना है ऐसे अल्कोहल. मतलब बेसिकली ये क्या हो रहा है, दिस इज रिडक्शन. ठीक है. मतलब अल्कोहल को जब वी यू व्हेन वी ऑक्सीडाइज द सेकेंडरी अल्कोहल, तब व्हेन वी गेट कीटोन. ठीक है. मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विल गिव कीटोन एंड द रिडक्शन ऑफ कीटोन विल गिव अल्कोहल. ठीक है. तो रिडक्शन के लिए वी विल यूज द रिड्यूसिंग एजेंट्स, एंड some common reducing agents are NaBH4 और LiAlH4. ठीक है. और इसको हम रिड्यूसिंग रिडक्शन को हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये तो हो गया नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट. और यू कैन यूज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. ठीक है. सो दीज आर टू वेज. So these were certain reactions of alcohols and alcohols and phenols. Now I would like to discuss one other question that is a little tricky, and it involves a new concept. That is why I am discussing it. So you have been given a reaction. ठीक है. ये थोड़ा tricky है. This is the reactant and HBr. So this is a reaction or a method to convert the alcohols to alkyl halide. ठीक है. पहले OH लगा था और अब halide लग गया है, ब्रोमीन. ठीक है. So this is the first category that we did by the reaction of the hydrogen halide. We are getting the alkyl halide. ठीक है. Now why this question is tricky? Because you see कि generally जब भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन होता है, तो जिस कार्बन पे OH लगा होता है, ठीक है, उसी कार्बन पे हैलोजन आके लगता है. मतलब OH चला जाता है एंड हैलोजन ऐड हो जाता है. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी कि जो OH है दैट इज अटैच्ड टू दिस सेकंड कार्बन. ठीक है. OH is attached to this carbon and bromine is attached to the other carbon or the adjacent carbon. ठीक है. होना क्या चाहिए था, जैसे मैकेनिज्म हम लोगों ने दैट वी हैड डिस्कस्ड, अकॉर्डिंग टू दैट मैकेनिज्म दिस ये जो ब्रोमीन है वो यहाँ अटैच होना चाहिए था इस कार्बन पे. ठीक है. क्योंकि इसी कार्बन पे OH लगा हुआ था. ठीक है. So according to that, the bromine should have been attached to this carbon, but this is not happening. So we will discuss why this is not happening. We will discuss the complete mechanism which is involved. ठीक है. तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि सबसे पहले ये जो HBr होगा वो क्या करेगा, इट विल आयनाइज H+ और Br माइनस. ठीक है. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन. इसमें क्या होगा, ये जो H+ होगा ना, पहले वो अटैक करेगा. ठीक है. ये H+ अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में, और ये जो OH के साथ है, OH के साथ साथ आके लग जाएगा. तो व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म OH2+. ठीक है. ये H+ आके अटैच हुआ है, एक H इधर पे और एक प्लस. तो दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल. ठीक है. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म बिफोर व्हेन वी वर डिस्कसिंग डिहाइड्रोजनेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन. तो उसमें भी जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, प्रोटोनेशन, और वी गेट द प्रोटोनेटेड अल्कोहल. ठीक है. तो वही सिमिलर स्टेप है यहाँ पे भी. नाउ इन द सेकंड स्टेप व्हाट विल हैपन इज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल.
तो ये वाला जो कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाला H2O, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा H2O रिमूव हो गया एंड यू आर लेफ्ट विद द प्लस चार्ज, दैट इज द कार्बोकेटाइन। ठीक है, नाउ अब अगर थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म दैट वी हैड डिस्कस्ड, थर्ड स्टेप शुड बी द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। मतलब अभी H प्लस ने अटैक किया था, अब Br माइनस अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, Br माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो व्हेन Br माइनस विल अटैक, इट शुड अटैच टू दिस पॉइंट। मतलब इस वाले कार्बोकेटाइन पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि Br माइनस है तो वो प्लस चार्ज को ढूंढेगा, इट विल सर्च फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड इट शुड गेट अटैच टू दिस पॉइंट। बट हमारा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लेट मी इरेज दिस। इन सच केसेस व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज यू कैन सी ये जो कार्बोकेटाइन है, दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये वाला जो कार्बन है, ये दो, ये इस कार्बन से और इस कार्बन से अटैच है। ठीक है, so that is why it is a 2 degree carbocation. Now as you all know that the stability, ये जो stability of carbocation होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, 3 degree carbocations are the most stable, then we have 2 degree and then we have 1 degree. So here what will happen कि because 2 degree carbocation is less stable as compared to a tertiary carbocation. ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है, ये जो इंटरमीडिएट है, व्हाट विल इट डू, इट विल ट्राई टू फॉर्म द टर्शरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पे चॉइस है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा कार्बन है जो कि टर्शरी कार्बन है। ठीक है, दिस कार्बन इज 3 डिग्री कार्बन, राइट, क्योंकि वो 3 कार्बन से अटैच है। तो देर इज एन ऑप्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा, दिस विल बी अ न्यू स्टेप and this step will be the rearrangement. This third step is the rearrangement. Rearrangement क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हाइड्राइड आयन है, ये जो H प्लस है ना, इट विल शिफ्ट। मतलब ये वाला जो 3 डिग्री कार्बन, जो 3 डिग्री कार्बन है, उसका जो H होगा, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द अदर कार्बन। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये वाला कार्बन, ये वाला जो हाइड्रोजन है, इट विल शिफ्ट हियर, और ये जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज विल शिफ्ट हियर। ठीक है, तो वी विल गेट, ठीक है, नाउ यू सी कि ये जो कार्बोकेटाइन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया है, क्योंकि ये टर्शरी कार्बन पे आ गया है। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द टर्शरी कार्बन। ठीक है, एंड दिस स्टेप इज नोन एज 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं, क्योंकि हमें तो दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो शिफ्ट किया है, बट बिफोर दैट हाइड्रोजन हैज बीन शिफ्टेड। ठीक है, तो ये जो टर्शरी कार्बन था, पहले इसके पास हाइड्रोजन था, नाउ इट हैज शिफ्टेड टू द अदर कार्बन, द कार्बन बियरिंग द पॉजिटिव चार्ज इनिशियली। ठीक है, क्योंकि हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो रहा है, इस वजह से वी कॉल इट एज 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट इज द न्यू कॉन्सेप्ट दैट यू ऑल लर्न टुडे, एंड because this is a new step, and after this what will happen, this is a 3 degree carbocation, right, and tertiary carbocation is the most stable, इसी वजह से शिफ्ट हुआ है। So now we will get the final product which is given in the question, and this fourth step is the nucleophilic attack. मतलब Br minus is a nucleophile and it has attacked the carbocation. This is Br minus, it has attacked this carbocation, ये वाले carbocation को अटैक करेगा and it will form this product. ठीक है, so this was a new concept and this will happen, this rearrangement or this hydride shift will happen only when you are able to form the tertiary carbocation. ठीक है, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब मान लो कि ये वाला जो CH3 ग्रुप है, ये वाला, ये होता ही नहीं। ठीक है, और देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो शिफ्ट नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बट इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इफ देयर इज अ 3 डिग्री कार्बन,
adjacent to a carbocation, adjacent to a 2-degree carbocation, then this hydride shift happens. Okay. So this was all for today. And from next class, we will, this was all related to the alcohols and phenol. Okay. So we had discussed the preparation, and after that we had discussed the physical properties, and then the reaction. जो भी major reactions होते हैं वो discuss it. Now we will move on to ethers. Similarly, we will discuss about the preparation, the physical properties, and the reactions of ethers. This was all for today. Thank you.